बहुत सारे पेरेंट्स का हाँ, ये ये सवाल होता है भेजने से पहले कि एफएमजी का पासिंग रेट इतना कम क्यों है। I cleared my FMG exam in my first attempt. Congratulations. Thank you. Hi Hi guys. welcome back to the series of MBBS abroad. Myself, Dr. Aditya Narayan Pandey, did my MBBS from Ukraine, Ternopil National Medical University. And I'm Dr. Anamika. I did my MBBS from First Moscow State Medical University, Moscow, Russia. Yeah. So today we're going to talk about 10 things you should know before opting MBBS abroad. The first thing that everyone asks a lot, especially the parents, कि कितना कॉस्ट लगता है, ट्यूशन फीस कितनी होती है. So I think it depends upon country to countries. Like if you are going to Russia or Kazakhstan, Kyrgyzstan or Ukraine, it will cost around I think 20 to 25 lakh. Yes. And if you are going to Georgia, it may cost around 40 to 45 lakh. But it depends on universities. It really depends on the city. For an example, मैं रशिया की कैपिटल मॉस्को में थी, तो कंपैरेटिवली मेरी जो ट्यूशन फीस थी वो दूसरी सिटी से बहुत ज्यादा थी और इनफैक्ट वहाँ पे ट्यूशन फीस तो ज्यादा होगी, साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग, फूड, एक्सपेंस, अदर थिंग विल बी आल्सो हाई. मुझे 2 BHK का अपार्टमेंट ऑलमोस्ट 55,000 रुपीस का पड़ता था, जो सिटी सेंटर से दूर था. एंड मेरी यूनिवर्सिटी जो टर्नोपिल थी, टर्नोपिल सिटी, वो not a big city, not a capital or a metro city. It was a small city, but it was a good city. And but like the apartment cost around $250 to $200 or $300 of 2 BHK. But it was near to university only. But if you are going far from university, it will cost around $180 or $200 also. Okay, so the price decreases. Yeah. There is a health insurance and visa also. Yeah. In some countries, you have to renew visa every year, and in some countries, they will give you visa for 6 years. For me, I had to renew my visa every year. And for me, it was like they gave visa for all 6 years. Okay. Yeah. But health insurance, it was like just you have to do every year. But in my country, it was $100. And in your country? I think around $200. Yeah. So it depends on country to country. It was like just miscellaneous things, which may vary little bit, but but tuition fees you will get know earlier only during your admission process. So you can choose that कितना अपने को खर्च करना है, कितना नहीं करना है, तो आप पहले ये चीजें पता कर सकते हो. If we talk about the food की कितना पैसा खर्च होता है खाने में, तो अगर आप खुद बनाएंगे, जो बहुत इजी होता है खुद से खाना बनाना, and healthy, वो आपको बहुत चीप पड़ेगा. And if you are choosing mess, it will cost higher. क्योंकि obvious सी बात है, आपका सब कुछ मेहनत and all बच रहा है. But I used to cook by myself. Plus you are a vegetarian and बहुत बच्चे vegetarian होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो कैसे survive करेंगे. So you should tell that. I think vegetarians को दिक्कत कहीं भी नहीं all over world में, क्योंकि आपको रोटी, चावल, दाल तो मिल ही जाते हैं, एंड सीजनल वेजिटेबल्स भी आपको मिल ही जाते हैं वहाँ पे. और जो नहीं मिलते हैं वो आपको फ्रोजन में मिल जाएंगे. तो जैसे भिंडी हो गई, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा. सो आई थिंक you can save your money, a lot money, if you are cooking by yourself. Yes. It don't take much time. Starting में थोड़ी दिक्कत होते हैं, but धीरे धीरे it's okay. और ट्रैवल के लिए ट्रैवल करना बहुत इजी होता है. मेट्रोस होती है, बसेस होती है. In my city it was like they make a bus card of a student and you have to recharge it and you have to travel by that. And it is उसका very कितना cheap. प्राइस लगता था? Like some buses were free for students. Oh. Yeah. And some buses around like 5 grivin or 10 grivins, like it around, I think in INR we can say 20 to 25 rupees. Bus pass tha, it was like around 300 rupees, और जो metro था it was like 700 rupees. Yeah, so it's like not much. It is very cheap also, I think. Yeah. But in an average, I think 10,000 से लेके 15,000 रुपीस में आपका एक मंथ का खर्चा निकल जाएगा. आराम से. काफी पेरेंट्स के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि अपने को एडमिशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लेना चाहिए, एजेंसी से लेना चाहिए, तो आपकी इस पे क्या राय है? एजेंसी से लेना बेटर होगा, cause it's safer. Because they already know the whole procedure and they have sent so many students before us. So even I went to an agency. What about you? I also went from agency only, and agency is like a guardian there, because अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत हो in documentation or anything related to university, they always there to help you.
और जैसे कि हम जब नए होते हैं, Yes. कुछ कुछ बच्चों के लिए बहुत नया होता है किसी नई कंट्री में ट्रैवल करना। तो अकेले ट्रैवल करने से बेहतर है कि आप दूसरे बच्चों के साथ ट्रैवल ग्रुप में जाओ। करें, और वहाँ पे जाके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस भी होते हैं और उसमें आपकी एजेंसी हेल्प करती Yeah, है। yeah. They also help in visa, Yes. renewal and everything. They might charge a little more money, but it's always better to have an agency there who can help you. Yeah. But इसमें आपको एक अच्छी एजेंसी चूज करनी पड़ेगी। या एजेंसी जितनी भी आपको फीस बता रही है ना, आई सजेस्ट कि 2-3 लाख ऊपर नीचे मान के Sure. चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी पड़ सकता है जरूरत, आई थिंक। जी। मैम ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, तो आने के बाद इंडिया में उसकी डिग्री वैलिड होगी कि नहीं है, वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर है कि नहीं है, मतलब काफी दिक्कत आते हैं। Sure. तो इस पे अपन कैसे मतलब वेरीफाई और चेक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें हमेशा एनएमसी से अपनी यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करना चाहिए। प्लस वी कैन ऑलवेज चेक WHO की वेबसाइट की Yeah. वो उससे रजिस्टर्ड है कि नहीं। डायरेक्ट मेल करके एम्बेसी से पूछ सकते हो कि ये इंडियन एनएमसी गाइडलाइन से मतलब यूनिवर्सिटी आती है कि नहीं आती, मतलब। और एनएमसी के साइट पे आजकल आई थिंक सब अवेलेबल है, सब Yeah. कुछ अवेलेबल है इनफैक्ट, कि ये यूनिवर्सिटी रजिस्टर है कि नहीं है, इसके पासिंग रेट क्या है, सब कुछ देख Yes. सकते हो आप। और ये सब हमें चेक करना चाहिए बिफोर चूजिंग द यूनिवर्सिटी। लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि अपन नए कंट्री जा रहे हैं तो लैंग्वेज अपने को नया होता है, सब कुछ नया होता है फैक्ट, बट लैंग्वेज, मोड ऑफ एजुकेशन क्या है? True. और क्या मतलब आपका क्या था मोड ऑफ एजुकेशन? मेरा इंग्लिश था। जो हमारे प्रोफेसर्स थे दे वर रियली गुड इन इंग्लिश, बट आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सीखना अच्छी बात भी है, क्योंकि आगे जाके जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि मरीजों को इंग्लिश आए। पुराने पेशेंट देखोगे वहाँ पे तो उनको इंग्लिश में बड़ी दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अपन यूपी से केरला गए, तो वहाँ पे भी अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करना है तो आपको वहाँ लोकल लैंग्वेज आना काफी जरूरी है, तभी आप पेशेंट से महाराष्ट्र चले गए तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। Exactly. आप पेशेंट को समझ पाओ, इंटरेक्ट कर सकते हैं अपन पेशेंट से। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप रशिया गए हो तो आपका काम ही नहीं हो पाएगा रशियन नहीं आई तो, क्योंकि आप ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हो। आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर कितना लाइफ इजी कर चुका है। सच है। तो मैम काफी पेरेंट्स के ये भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, ये सब काफी ठंडी कंट्रीज हैं। तो वो ये पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा वहाँ सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और कैसे मतलब उस वहाँ क्या सुविधा होती है? जब मैं इंदौर से मॉस्को गई थी तो मैं बहुत ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट से एक्सट्रीम ठंड के क्लाइमेट में गई थी। सो फॉर मी इट वाज रियली कोल्ड, बट वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज होती है, आपका जो अपार्टमेंट होगा, मेट्रोस होगी, बसेस होगी, वो सब सेंट्रली हीटेड होगा। तो वहाँ पे ठंड लगने का कोई सवाल नहीं है। और उनके क्लोथ्स भी मतलब उस टाइप के बने होते हैं कि आप अगर आप उनका एक बार कोट पहन लो तो आप उनके आराम से घूम सकते हो। और विद इन द सिटीज में भी कुछ डिस्टेंस पे वो हीटर प्रोवाइड कर रखते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको ठंडी लग रही है तो आप हीटर के पास जाके प्लस 24/7 गर्म पानी आता है। इवन इन विंटर और इन समर ऑल्सो आपको गर्म पानी तो मिलेगा ही। और हम एक्लामेटाइज भी हो ही जाते हैं एक टाइम के बाद में। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड सेफ्टी इशू, बिकॉज अपन जैसे कि मूवीज में देखते हैं कि रशियन माफिया, चाहे इधर की काफी माफिया और ये सब, तो आपका क्या है मतलब कि इज इट सेफ और नॉट फॉर स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिकॉज उनके पेरेंट्स के ये क्वेश्चन आते हैं। एज अ गर्ल मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। आई थिंक इट्स रियली सेफ अंटिल एंड अनलेस यू क्रिएट अ न्यूसेंस देयर। अगर आप अपने डेकोरम में हो तो वो दिक्कत नहीं करते हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। और आई थिंक कि दे इनफैक्ट दे लव इंडियंस, यू नो, they know song Jimmy Jimmy Choo Choo, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, जूही चावला, yeah. They love Indians and they love Bollywood also, so it's not that much problem, but yeah, you should maintain your decorum always. काफी पेरेंट्स के क्वेश्चन ये होते हैं कि कितने साल की स्टडी हुई, क्योंकि इंडिया में थोड़े अलग है और बाहर अलग है। यस, वहाँ पे जो स्टडीज का ड्यूरेशन है वो ऑब्वियस सी बात है, इट्स मोर देन इंडिया। 6 साल का एजुकेशन होता है एंड वो मैंडेटरी हो गया है। अब तो 54 मंथ का इन्होंने एनएमसी ने यही कर दिया है, जितना अभी तक लेटेस्ट गाइडलाइन मुझे पता है कि 54 मंथ इन्होंने कर दिया है, व्हिच इज इक्वल टू 6 ईयर आई गेस। सो 6 इयर्स वहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 ईयर इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी। या सो अर्लियर ऐसा क्या होता था, कुछ कंट्रीज में ऊपर किसी में 5 साल का होता था, किसी में 6, किसी किर्गिस्तान में पहले 5 साल का था। तो अब इन्होंने सबके लिए इक्वल कर दिया है। ये जैसे मेरा खुद का क्वेश्चन है कि जैसे कि इंडियन कम्युनिटी का क्या हेल्प है वहाँ पे?
I think it's really important because जो हमारी seniors होंगे, they will be the one who will guide us when we go there. भले वो पढ़ाई हो या फिर हमें किस जगह कौन सा सामान लेने जाना चाहिए, हमें कौन सी चीज कहाँ अवेलेबल होगी, किस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए, सब वो आपको हेल्प कर, इवन इन स्टडीज और इन डॉक्यूमेंटेशन पाथ दिखा देते हैं अपने को। इनफैक्ट एक तो एजेंसी आपको इसमें हेल्प करती है, लेकिन साथ में इंडियन कम्युनिटी होने पे ये होता है ना कि कभी भी कुछ भी दिक्कत हो, चाहे कभी भी कुछ ऊपर नीचे हो, तो इंडियन कम्युनिटी आपको हेल्प करने के लिए रहेगी वहाँ पे। Plus you can always celebrate some festivals with them. Yeah, in my university we used to celebrate a grand celebration of Diwali and Holi. हमारे इधर भी दिवाली होता था। So ma'am, also what's your thought like having Indian embassy? Because आपका क्या है कि Indian embassy से देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? I think सब कंट्रीज के पास होते हैं कि नहीं होते हैं Indian embassy अपने? जब भी हम किसी कंट्री को चूज करते हैं, आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि वहाँ पे हमारी इंडियन एम्बेसी हो, बिकॉज वी कैन गेट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, और फिर हमारी इंडियन एम्बेसी ही है जो हमारी हेल्प कर सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका पासपोर्ट गुम गया है, जो काफी कॉमन है, बहुत बच्चों के साथ होता है, वो अपना पासपोर्ट भूल जाते हैं। पासपोर्ट एक ऐसी चीज होती है जो हर स्टूडेंट को अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी कभी भी चेकिंग हो सकती है। आपकी आइडेंटिटी है कि आप एक इंडियन हो। True. तो अगर आपकी एम्बेसी उस कंट्री में है, तो अगर आपका पासपोर्ट बाय मिस्टेक गुम हो गया, तो वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेगी। लेकिन कुछ कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी वहाँ नहीं होती है, तो वो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। सो प्लीज चेक इट बिफोर गोइंग। प्लस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, जो हमारी एनएमसी होती है, हमारे एजुकेशन ओवर होने के बाद, आफ्टर क्लियरिंग एफएमजी एग्जाम, आफ्टर क्लियरिंग एफएमजी एग्जाम, वो वेरीफाई करती है एम्बेसी से रिगार्डिंग आवर स्टडीज। सो वहाँ पे भी एम्बेसी का बहुत बड़ा रोल है। सो इंडियन एम्बेसी जस्ट लाइक योर पेरेंट देयर, कि कुछ भी हुआ इंडियन एम्बेसी आपके पास है। अच्छा, सो नाउ वी टॉक की आफ्टर क्लियरिंग एफएमजी एग्जाम हमारी जो एनएमसी है वो वेरीफाई करती है एम्बेसी से। आई वांट यू टू टेल मी कि एफएमजी का जो स्कोर है, पासिंग रेट है, वो इतना लो क्यों है? बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल होता है भेजने से पहले कि एफएमजी का पासिंग रेट इतना कम क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल दैट आई क्लियर्ड माय एफएमजी एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, या सो पहले क्या था कि अपने पास एक पाथ नहीं था। अब क्या हो गया कि इतने कोचिंग्स आ गए ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहले क्या था, बस ऑफलाइन कोचिंग्स होती थी। तो बच्चों को फर्स्ट ईयर से पता नहीं था कि पढ़ना क्या है, कैसे क्या चीज करना है। अब क्या है कि ऑनलाइन कोचिंग इतनी सारी आ गई है कि अपने को एक रोड मिल गया है जो अपने को बता देगा कि पढ़ना क्या है, कैसे करना है। इसलिए अब आप देखोगे मैम कि एफएमजी का जो पासिंग है धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है। ट्रू, बिकॉज अब आप ऑनलाइन भी अपने घर से बैठ के पढ़ सकते हो। जैसे मैंने किया था कि मैंने एक ऑनलाइन क्लास का सब्सक्रिप्शन ले लिया था और फिर मैं घर बैठ के ही पढ़ती थी, एंड इवन आई क्लियर्ड माय एग्जाम। टू वेरी ऑनेस्ट, मैंने वहाँ पे ऐसा नहीं था कि नील बट्टा सन्नाटा था। मैं वहाँ पढ़ता था फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड ऑल, बट एफएमजी की प्रॉपर जो प्रिपरेशन होती है मैंने लास्ट के 3 मंथ में किया है, कोचिंग ज्वाइन करके लास्ट के 3 मंथ में। उसके पहले पढ़ता था, लेकिन एफएमजी के लिए लास्ट के 3 महीने। सो इट्स नॉट difficult also, and I was not so brilliant student. Congratulations. Thank you. So I was just an average student in India also and there also. But अगर आप पढ़ोगे, you can qualify FMG exam easily. Yes, you can do in it. first or second attempt you can qualify. बहुत बच्चों ने क्लियर करी है, and I think anyone can do it if they put their efforts in. Yeah, exactly. Oh. Yeah, 10 most important things that you should know before going abroad for MBBS is done. If you have any queries, please write us in the comment section. You can also personally DM us, and we'll mention our Instagram IDs so that you can text us. Yeah, and also like you can tell us on which topic we should make our next video. So you can comment us, keep hustling. Oh, yeah. So okay guys, bye bye. Bye bye. Take care. See you soon.